یہ گورنمنٹ کالج سرائے نورنگ کا داخلی دروازہ ہے اور ہم اس کے اندر سے داخل ہو رہے ہیں. آپ نظارہ کریں گے کہ اس کالج کو کیا کیا میسر آیا ہے. اس میں نظارت ہے. کلاس 4 کی تعداد 11 سے 13 تک ہے اور اس کی بلڈنگ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول جیسی ہے جس کو تقریباً 3 یا 4 کینال ایریا میسر ہو. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گورنمنٹ ڈگری کالج کا، جبکہ یہ کبھی کبھار فارسٹری کا مسجد ہوا کرتا تھا. یہ فارم ہاؤس کا حصہ تھا. یہ علاقہ بھی متنازع تھا. یہ ضلع بنو اور لکی مروت کے بیچ سنگم میں واقع ہے. یہ سرائے نورنگ بازار کے ساتھ ہی واقع ہے، لیکن اس پہ حکومت جو تھی وہ بنو کی تھی. یہ جب بنا 2002 کا وقت تھا. سید افتخار حسین شاہ نے اس کو تعمیر کر کے اس کی افتتاح کی تھی. یہ وہی پرانا مسجد، جب بارش ہو جائے تو اس میں 2-3 فٹ کا پانی کھڑا ہوتا ہے اور یہ ناقابل استعمال ہو جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس حالات کو. اس مسجد کے جو بھی حالات ہیں کافی خدشات سے بھری پڑی ہیں اور یہ کسی بھی وقت منہدم ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں بارش کا جو ہے پانی کھڑا ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ پرنسپل نے اس کالج میں انتہائی خوبصورت انداز سے، انتہائی دلچسپی کے ساتھ کافی ترقیاتی کام کیے ہیں. کالج فنڈ سے بھی اور خود جس سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے اس میں سب کچھ آیا ہے. آج ہم آپ کو اس کے حالات زار اور پرنسپل صاحب کا بھی انٹرویو دکھائیں گے کہ اس میں انہوں نے کیا کیا اچیومنٹ کی ہے، انہوں نے کیا کیا حاصل کیے ہیں. اور آپ کے ساتھ ہم اسٹاف کی بھی اور طلباء، چونکہ اس وقت کرونا 21 کے تحت طلباء کی تعداد کم ہے، لیکن ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر بھی اطلاع دیتے چلے کہ یہاں پہ ایک کلاس روم میں تقریباً 150 اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں، جو کہ گائے اور بیر بکری کی صورت میں شاید ہم نے تو بھیڑ دیکھے ہوں گے لیکن کلاس روم میں اتنی تعداد کبھی ہم نے نہیں دیکھی ہوگی. یہ میرے شمال کی جانب جو روم نظر آ رہے ہیں لیکچرر رومز ہیں. اس میں لیکچررز کلاس لیتے ہیں اور یہ بھی، اور میرے جنوب کی جانب جو سرائے نورنگ کی آبادی کی طرف سے کا حصہ ہے، یہ بھی لیکچرر روم ہے. اس میں بھی کلاسز لیتے ہیں. اور چونکہ کالج کا اپنا ایڈمنسٹریشن ہال نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن بلاک نہیں ہے، لیکن انہوں نے کلاس روم میں عارضی طور پر ایڈمنسٹریشن بلاک تعمیر کر کے یہاں پہ پرنسپل آفس، کلریکل آفس اور سٹاف روم بنائی ہے، جو کہ کالج کا خاصا ہوا کرتا ہے. لیکن اس میں یہ بھی نہیں ہے. کلاس روم کی تعداد گھٹا کے انہوں نے یہاں پہ ایڈمنسٹریشن بلاک تعمیر کیا ہے اور خود بیٹھتے ہیں، کیونکہ کسی بھی کالج کو تعمیر کرنے کے لیے ایڈمنسٹریشن بلاک جو ہے وہ سب سے پہلے تعمیر کیا جاتا ہے، بعد میں کلاس روم اور فیکلٹیز بنائی جاتی ہے. تو آج ہم آپ کو اس کی کچھ مناظر ایکسکلوسیو دکھائیں گے. آپ دیکھیں گے یہ ہے پرنسپل آفس، یہاں پہ کلریکل آفس بھی ہے اور ساتھ یہ سٹاف روم بھی ہے. آپ اگر دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کی جانب جو ہے یہ لیبس ہیں. یہاں پہ کیمسٹری لیب، فزکس ڈپارٹمنٹ، لیکن یہ ناکافی ہے ان طلباء کے لیے. یہ ناکافی ہے کیونکہ یہاں پر اوور برڈن ہے اور تقریباً 4 سے 5 کینال کے ایریے میں یہ کالج بنا ہے، گورنمنٹ ڈگری کالج. کلاسز کی تعداد گورنمنٹ ہائی اسکول سے بھی کم ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ میری پیچھے کی جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ ہے نیچے، اور اوپر یہ فزکس ڈپارٹمنٹ.
लेकिन डिपार्टमेंट में तकरीबन 8 से 9 कमरे होनी चाहिए और इसमें कुल मिला के 4 से 5 कमरे हैं और ये 2 डिपार्टमेंट में तकसीम किया गया है। इसके साथ यही मुल्हिक ये कमरे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है इसको भी उन्होंने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, बायोलॉजी डिपार्टमेंट में जो है तकसीम किया हुआ है, लेकिन सिर्फ 2 कमरे, एक नीचे और एक ऊपर, ये 2 कमरे जो है इसमें उन्होंने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, जो कि मेरे ख्याल से तालीम की ज़बूहाली का यही एक ज़रिया ही हो सकता है कि एक ही क्लास में उसका लैब भी है, एक ही क्लास में उसका जो है डिपार्टमेंट भी है और एक ही क्लास में उनकी तादाद जो है तकरीबन 100 से लेकर 150 तक होती है, जो कि इंतहाई दिल गिरफ्ता बात है। यहाँ पे हम आपको बताते चले कि इसके साथ साथ जो मुल्ही का इलाका है, ये पुराना फॉरेस्ट इलाका है, पुराना जो है फार्म हुआ करता था, यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो पुराना हिस्सा था, यही ब्लॉक जो पहले उन्होंने लिया था कॉलेज के लिए, और जहाँ पे कॉलेज शिफ्ट हुआ था तो ये उन्होंने प्रिंसिपल ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के लिए लगाई थी, कमरे जो है बनाई थी। आप देख सकते हैं कि इस कमरों की क्या हालत ज़ार है। हम आपको नज़दीकी से इसका एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि इनमें कौन कौन सी खराबियाँ हैं और इसकी छतें टपक रही है बारिश में, यहाँ पे अमला बैठ नहीं सकता। प्रिंसिपल साहब ने अपने तौर से इसको रिपेयर भी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर तकरीबन हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त मुनहदिम हो सकते हैं, क्योंकि ये तकरीबन 40 से 50 साल का पुराना मलबा है और उस पर खड़े किए गए ये कमरे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें आजकल ये स्टॉक रूम बनाया हुआ है उन्होंने, और मेरे इस साइड पे शिमाल की जानिब अगर आप नज़र दौड़ाएं तो वही पुराने लेटरिन्स हैं। ये आप देख सकते हैं कि कॉलेज के लिए सिर्फ लेटरिन्स बनाए गए हैं। ये पुराने बिल्डिंग के लेटरिन्स हैं, इनको उन्होंने रिपेयर किया हुआ है और ये तकरीबन नाकाफ़ी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 बाथरूम है, जो कि स्टूडेंट के लिए नाकाफ़ी है। और ये एग्रीकल्चर के उस वक़्त के फार्म जो थे उसमें बनाए गए थे अपने स्टाफ के लिए, लेकिन अब ये कॉलेज इस्तेमाल कर रहे हैं और कॉलेज इंतज़ामिया ने उनको रिपेयर करके कॉलेज का हिस्सा करा दिया है। आप देख सकते हैं इसके ये ऊपर के मनाज़िर आप देख सकते हैं कि इनमें अभी भी क्रैक्स हैं, इनमें भी अभी पानी की जो लकीरें नज़र आ रही है आपको कि इसमें क्या क्या इसमें जब भी बारिश होता है तो पानी इस पर खड़ी हो जाती है और टपकती है ये छतें, तो ये नाकाबिल इस्तेमाल है। और इस बरामदे में अगर आप देखें तो जगह जगह पे क्रैक्स नज़र आ रहे हैं आपको, और यकीनन ये इंतहाई दिल गिरफ्ता बात है कि कोई भी ऐसा इदारा जो कि हायर एजुकेशन के लिए बनाया गया हो और वो ज़बूहाली का शिकार हो, तो आप इससे अंदाज़ा खूब ही लगा सकते हैं कि माशरा किस तनज़्ज़ुल का शिकार है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं ये एग्ज़ामिनेशन हॉल है, जो कि वो वर्कशॉप वेयर हाउस हुआ करता था एग्रीकल्चर फार्म का। आप देख सकते हैं कि इसमें लोग एग्ज़ाम देने बैठते हैं और इसके भी वही हालत है कि इसमें ना तो छत है लेकिन वो है शेल्टर का, और ये गर्मी में इतना शदीद गर्म होता है कि इसमें अगर आप 100 के करीब भी पंखे लगाएं तब भी आपको ये ठंड की सहूलत फराहम नहीं कर सकती। पिछले गवर्नमेंट में मुश्ताक गनी जब एजुकेशन के मिनिस्टर थे वो आए थे यहाँ पर, उन्होंने ख़ुद इसकी विज़िट की थी और उन्होंने भी इस पे अफसोस का इज़हार किया था कि यकीनन ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का हिस्सा हो और उसका ये एग्ज़ामिनेशन हॉल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेड़ियाँ भी नहीं बैठ सकती, लेकिन हमारे बच्चे मुस्तकबिल के मेमार इसमें एग्ज़ाम देने बैठते हैं। आप देख सकते हैं अंदरूनी मनाज़िर हाल के, यहाँ पर तकरीबन
300 लोगों की बैठने की गुंजाइश है। और इसका अंदाज़ा आप कभी भी लगा सकते हैं कि ये पहले वेयर हाउस हुआ करता था। आप इसकी छत अगर देख सकते हैं, अगर आप मुलाहिजा कर सकते हैं इसको, मेरे प्रोड्यूसर इस्माइल आदर्श आपको दिखाएंगे इस छत की हालत ज़ात। इसमें तकरीबन 10 या 15 पंखे लगे हुए हैं, जबकि 300 लोगों की बैठने की इसमें गुंजाइश है। तो आप खुद ही इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक हॉल नहीं है, लेकिन वेयर हाउस से हॉल इसमें बनाया गया है। और इसको हॉल की अशद ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो हॉल में सहूलतें होती है वो नाकाफ़ी है। नाज़रीन, मेरे पीछे की अगर आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं तो ये 20 क्लासेस इसमें हो रही है। 20 क्लासेस जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का दर्जा रखती है। आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी क्लासेस मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 रूम्स पर मुश्तमिल ये BS डिपार्टमेंट है और BS सेक्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं बमुश्किल ही यहाँ पर 3 से 4 रूम्स नज़र आ रहे हैं आपको। और ये लाइब्रेरी ब्लॉक है। आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ 2 कमरे हैं। लाइब्रेरी ब्लॉक के लिए कॉमन रूम नहीं है, सिर्फ लाइब्रेरी वगैरह है। और एक ऑफिस है लाइब्रेरियन की, जो कि आप देख सकते हैं। ये सेंट्रल लाइब्रेरी है गवर्नमेंट कॉलेज की। और क्या आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, किस क्लास में? BS केमिस्ट्री है, 7th सेमेस्टर हमारा चल रहा है। अच्छा, तो कौन सी प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे हासिल है? चूँकि BS तो मास्टर लेवल की डिग्री है और यहाँ पे आप अपने ही इदारे में घर के दहलीज पे जो है मास्टर की तालीम हासिल कर रहे हैं। क्या क्या आपने इसमें पाया है, क्या क्या खोया है? क्या आपको जो है इसमें बेहतरी नजर आई है या बेहतरी की जानिब गमज़न है? पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हम BS स्टार्ट पहली बार शुरू हो रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि MSc केमिस्ट्री MSc के बराबर है ना BS। तो हम ये गरीब स्टूडेंट हैं हमारे इलाके के, तो वो यूनिवर्सिटी के खर्चात अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो BS प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, ये बहुत अच्छा एफर्ट है हुकूमत की जानिब से और हमारे इदारों की जानिब से। और जैसे कि हम अभी स्पेशलाइजेशन ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट हमें यहाँ पे जो एजुकेशन का सिस्टम है बनिस्बत यूनिवर्सिटी के अच्छा है। इस तरह तो पहली बार स्टार्ट हो रहा है, इस तरह तो नहीं कह सकते कि यूनिवर्सिटी के बराबर है या नहीं, लेकिन स्टार्ट जो है ये अच्छा है। फिलहाल पहली बार स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर यूनिवर्सिटी के बराबर नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उस जैसा करें, तो मेरे ख्याल में ये स्टार्ट अच्छा है। अखराजात तो यूनिवर्सिटी से बहुत कम है। ये हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया कि BS कॉलेज में शुरू किए, क्योंकि हमें खुद भी यूनिवर्सिटी को एफोर्ड नहीं कर सकता। क्या पैगाम देना चाहेंगे दीगर तलबा को कि आप यूनिवर्सिटी के बजाय यहाँ पे तालीम हासिल करें, क्योंकि यहाँ पे जो अखराजात है वो आपकी सारी डिग्री के बराबर है। एक सेमेस्टर के जो अखराजात यूनिवर्सिटी में होते हैं वो आपके सारे BS पे आ सकते हैं। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे वालिदैन और तलबा को? मैं तो ये पैगाम देना चाहूँगा, जो गरीब स्टूडेंट हैं और वो चाहते हैं कि हम MSc करें, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो या ज़ूलॉजी में हो, बॉटनी में हो, तो वो अगर यूनिवर्सिटी के खर्चात नहीं अदा कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ज़रूर तालीम हासिल करें, यहाँ पे BS स्टार्ट करें। लेकिन अभी जो हमारे न्यू क्लासेज है, इसमें अभी तक कोई भी एडमिशन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? ये इस वजह से नहीं लिया कि भाई हमारे खर्चात बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं स्टूडेंट और उनके वालिदैन को गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो अखराजात हैं वो बहुत कम है। आप एक सेमेस्टर में, अगर यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर तकरीबन 30-40 हज़ार का खर्च आता है एक स्टूडेंट पर, तो मेरे ख्याल में 30-40 हज़ार पूरे BS पर आते हैं अगर आप गवर्नमेंट इदारों में करें। थैंक यू। जो ऑफिस है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, यहाँ पे केमिस्ट्री कोऑर्डिनेटर बैठता है और यहाँ से इसको कंट्रोल करते हैं। ये है बायोलैब, आप देख सकते हैं नाज़रीन,
पीछे की तरफ आप अगर मुड़ के देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें बायो के इंस्ट्रूमेंट हैं, बायो लैब है यहाँ पर, और बायो के अभी इस वक्त बायो 20 क्लासेस हो रही हैं। हम लेक्चरर साहब से कुछ बात करना चाहेंगे, अगर वो हमें थोड़ा वक्त दे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या है? यहाँ पे बीटी ज़ूलॉजी हूँ जी इस कॉलेज में, और BS7 सेमेस्टर की अभी क्लास है जू जियोग्राफी की। जी तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि यूनिवर्सिटी और यहाँ के बीएस सिस्टम में कितना फर्क है? तो यहाँ पे लेवल फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ पे क्लासेस बहुत अच्छे हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी से मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़े अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पे मल्टीमीडिया की क्लासेस होती हैं, मल्टीमीडिया का, और यहाँ पे हम लेक्चर दे रहे हैं जो कन्वेंशनल मेथड है पुराना, वो अच्छी तरीके से है। मल्टीमीडिया की सिर्फ यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, और लैब यहाँ पे एडवांस नहीं है। बाकी क्या है फैसिलिटीज़? तो लैब अगर एडवांस नहीं है तो क्या इससे बीएस की क्लासेस में फर्क नहीं पड़ेगा? आपके पास जब तक इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे तो स्टूडेंट कैसे सीखेंगे कि क्या क्या है इसमें, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या इसमें होना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले लैब जो है वो ज़्यादा एडवांस है और डेवलप है, और हम ये गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि थोड़े से एडवांस करें, डेवलप करें, तो इंशाल्लाह ये जो फर्क है थोड़ा सा प्रैक्टिकल फील्ड वाले जो, वो इंशाल्लाह वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन वो तो ऑटोनमस बॉडी होती है, उसके पास अपना फंड होता है, लेकिन आप जो है गवर्नमेंट की जानब देते हैं तो यकीनन इसमें तो फर्क होगा। बिल्कुल, यस जी होगा ना। तो गवर्नमेंट से हम ये गुजारिश करते हैं कि वो थोड़ा सा फंड रिलीज करें कॉलेजेस को, ताकि वो जो कमी है वो भी पूरा करें। बीएस स्टूडेंट और वालिदैन के लिए आपका पैगाम? माशाल्लाह BS स्टूडेंट के लिए और वालिदैन के लिए ये पैगाम है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें और अपने बच्चों की भी फैसिलिटेट करें, और इनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि कम पैसों में, कम फीसों में यहाँ पे हम इनको पढ़ाते हैं, और यूनिवर्सिटी लाइफ हम इसको फैसिलिटीज़ और टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। नाजरीन, आप देख रहे हैं ये है कंप्यूटर लैब। तकरीबन यहाँ पे कंप्यूटर लैब में इंतहाई आसानियाँ पैदा की है गवर्नमेंट कॉलेज ने। यहाँ पे प्रोजेक्टर के ज़रिए भी एजुकेशन दे रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जो भी फैसिलिटेशन है तकरीबन अवेलेबल है। नए इंस्ट्रूमेंट भी आए हुए हैं और पुराने इंस्ट्रूमेंट उन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन चूँकि कोरोना SOPs के तहत कुछ तलबा आते हैं और कुछ तलबा की यहाँ पे छुट्टी होती है, तो शायद कि आज जुम्मा है, क्लासेस पहले ख़त्म हो चुके हैं हमारे आने से पहले। तो यहाँ पे वेल एस्टेब्लिश्ड नज़र आ रही है आपको, और यकीनन ये बैचलर ये BS कंप्यूटर साइंस जो उन्होंने शुरू किए ये काबिल सताइश है। इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पे लेक्चरर है, लेक्चरर साहब इससे बात करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमें मालूमात देंगे BS के हवाले से कि यहाँ पे BS में कितनी तादाद है, कितनी फैसिलिटेशन आपने दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इनामुल्लाह है और मैं यहाँ लेक्चर कंप्यूटर साइंस के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ BS 4 ईयर के स्टूडेंट भी पढ़ाते हैं हमको। तकरीबन हमारे 45 डिसिप्लिन में हमारे पास BS के स्टूडेंट्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास इंटर के भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे लिए इस कॉलेज को अपग्रेड करें और इसको पोस्ट ग्रेजुएट का दर्जा दिया जाए। जब भी यहाँ पे BS की क्लासेस शुरू होती है तो ऑटोमेटिकली पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, लेकिन आप क्या पैगाम देना चाहेंगे वालिदैन को कि आप अपने बच्चों को BS की तरफ राग़िब करें ताकि यहाँ पे घर की दहलीज पे उनको मास्टर लेवल की एजुकेशन मिल सके? जिस तरह आपको मालूम है कि आज सारे दुनिया में तकरीबन क्या BS की डिग्री स्टार्ट हो गई है, तो पाकिस्तान लेवल पर BS स्टार्ट हो गई है। तो हमारा वालिदैन से ये मुतालबा है क्या कि कॉलेज लेवल पे जो BS को हम पढ़ाते हैं तो बहुत कम खर्चे पे उनको BS की डिग्री देते हैं, और घर की दहलीज पे उनको BS की डिग्री देते हैं। तो यकीनन ये आसानियाँ हैं, ये बिल्कुल आसानी है। घर की दहलीज पे घर में ही आपको BS की डिग्री मिल सकती है, और आप मास्टर के लेवल पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
थैंक यू सर. طلعت ريبورتنج ودي بيئة ذاك فيزيكس ليب. ये है फिजिक्स लैब. आप देख सकते हैं यहाँ पे हाजी मतीउल्लाह खान साहब जो कि लैब असिस्टेंट है, उन्होंने ये तो संभाला हुआ है और यहाँ पे तमाम तकरीबन चीज़ें जो है फिजिक्स में जो दरकार होती है उसकी फैसिलिटीज है. लेकिन इस हवाले से फिर भी हम उसके साथ बात करना चाहेंगे क्योंकि इसमें किन किन चीज़ों की कमी है और क्या क्या चीज़ें अभी इनको दरकार है. तो जुम्मा है आज, स्टूडेंट की छुट्टी भी है और क्लासेस जो कोरोना सर्विस मैंने पहले भी कहा था कि कोरोना सर्विस के तहत कुछ तलबात हैं और कुछ का जो छुट्टी होता है, लेकिन हमारे आने से पहले हम पे क्लासेस ख़त्म हुए. अब हम जनाब हाजी मतीउल्लाह खान साहब से इस बारे में बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे चीज़ें जो है सारी अवेलेबल है या कुछ किस चीज़ों की कमी है. अस्सलाम वालेकुम. किन किन चीज़ों की कमी दरपेश है आपको और क्या क्या चीज़ें आपको मज़ीद चाहिए? इंटर लेवल पे तो सामान मुकम्मल है, लेकिन BS और BSc लेवल पे सामान गवर्नमेंट से तो मुताबिक है सामान कई चंद साल से तो नहीं आया हुआ है. जो कि मेस के और मज़ामीन वगैरह का जो सामान है वो तो आता है फिजिक्स वाला, तो अभी उनको ये भी असर नहीं है फिजिक्स का जो BS है और BSc लेवल के जो सामान है वो भी कम है. अभी BSc तो उन्होंने ख़त्म किया है, तो ये सब कौन का नुकसान हुआ है हमारे ख्याल में. तो यहाँ पे BS जो है तो फिजिक्स का शुरू नहीं हो सकता है. नहीं, शुरू नहीं हो सकता और BSc भी ख़त्म किया है. डिग्री लेवल की तो BA और BSc जो है ना वो ज़रूरी है. अलबत्ता बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस जो हैं या यूनिवर्सिटियाँ उनमें अगर BS हो चालू किया जाए तो बेहतर है. डिग्री कॉलेजों में तकरीबन तमाम कॉलेजेस में मेरे ख्याल में BA और BSc के क्लासेस शुरू करनी चाहिए जहाँ पे नहीं है. तो यहाँ पे आप कहते हैं कि एसोसिएट डिग्री ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, वो भी होनी BSc चाहिए. जैसे रेजिडेंशियल कॉलेज में शुरू की हुई है ना वो भी होनी चाहिए कि भी फ़ायदा है तलबा को. इसलिए कि नवरंग में जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो नवरंग की है डिस्ट्रिक्ट में, तो इसी लेवल पे हमारे बच्चों का तालीम जो है वो ज़ाया हो रहा है. क्या पैगाम है आपका वालिदैन और बच्चों के लिए? वालिदैन और बच्चों के लिए तो पैगाम ये है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई पे मरकूज़ करे और उनको कॉलेज में दाखिले के लिए भेजे. तकलीफ तो वो बर्दाश्त करते हैं और हमारी तो कोशिश है हमसे जितना हो सके हम तो उनका ख्याल रखते हैं अपने बच्चों जैसे. थैंक यू सर. जी. नौजवान आप देख रहे हैं कि ये मेन लाइब्रेरी है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सरायनगर. यहाँ पे प्रिंसिपल साहब ने इसको वेल एस्टेब्लिश करने की भरपूर कोशिश की है और यहाँ पर तकरीबन 16 नए वेल फर्निश जो है अलमारियाँ खरीदी है. यहाँ पर बुक्स की तादाद तो कम है लेकिन जो फैसिलिटेशन है अलमारी के हवाले से है और जो किताबों के हवाले से है. और ये इंद्राज तो इसके असिस्टेंट के साथ होगा, लाइब्रेरी असिस्टेंट जो है उसके साथ होगा. लेकिन यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं अच्छे अंदाज में उन्होंने इस लाइब्रेरी को कायम किया हुआ है. यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कुर्सियाँ भी रखी हुई है. चूँकि कॉमन रूम में तो मेज़ होना चाहिए, वहाँ पे उसके साथ लोग होने चाहिए. तो आप आपको पीछे की तरफ दिखाएंगे तो शायद इस साइड हाँ कॉमन स्टडी रूम जो है यहाँ पे बनाया हुआ है. इसके बाद ये काफ़ी अच्छे इंतजाम किए लाइब्रेरी में और यकीनन काबिल दाद है प्रिंसिपल साहब के इक़दाम. तो हम पूछना चाहेंगे, कुछ बात करते हैं लाइब्रेरियन से कि लाइब्रेरियन ने इसमें क्या क्या चेंजेस देखी है और आने वाले वक्तों में क्या क्या चेंजेस मज़ीद देखे आएंगे. अस्सलाम वालेकुम. कितनी किताबें आपके पास अवेलेबल है और कितनी हमारे यहाँ तलबा की तादाद यहाँ पे ज़्यादा है पढ़ने के हवाले से और आपके लिए किताब या जगह की कोई कमी वगैरह? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये नया ब्लॉग बना है ना, इसकी वजह से काफ़ी जो है ना वो आसानी पैदा हुई है. तकरीबन 3000 बुक्स है ना और हमारे जो BS शुरू है ना उसके हवाले से है कि हर सब्जेक्ट में हमारी किताबें मौजूद है. BS के हवाले से स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, ये अखबार वगैरह भी पढ़ते हैं, ये रसायल भी पढ़ते हैं और हम बुक्स भी इशू करते हैं. तो
मजीद आपके ख्याल में कुछ बेहतरी होनी चाहिए BS के हवाले से, जो भी किताबें आपने यहाँ पे रखी हुई है वो पूरे हैं या मजीद होना चाहिए कि उसके लिए कुछ और भी हो सके? अल्हम्दुलिल्लाह भी तो हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है, क्योंकि जो जितने भी BS सब्जेक्ट हैं हमारे, उसमें हर सब्जेक्ट में यहाँ किताब मौजूद है। क्योंकि हमारी सिलेक्शन जो हुई थी वो सब स्पेशलिस्ट को हम लाहौर ले गए थे, हर एक सब्जेक्ट का अपना स्पेशलिस्ट था हमारे साथ, तो उसने आपने जो है ना वो सिलेक्शन जो की है अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक की है। तो स्टाफ वगैरह भी मुतमईन है, स्टाफ भी इधर आते हैं, वो भी किताब इशू करते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं इधर, उनको भी हम किताबें देते हैं। हाँ। तो वालिदैन के लिए आपका पैगाम BS और ये BS के हवाले से और तलबा के लिए? वालिदैन के लिए पैगाम है कि अभी जो ये नई फैसिलिटी आई है, पहले तो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अभी ये गरीब तलबा को 2 स्टेप की सहूलत मिल गया है, तो उनको चाहिए कि अपने तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा इधर भेजे कॉलेज में, क्योंकि अभी मास्टर के लिए ये स्टडी हो रही है इधर, और ये गरीब तलबा को जो है ना वो ना हॉस्टल की फ़ीस की ज़रूरत पड़ती है, और जो है ना वो डे स्कॉलर की तरह रोज़ाना आते हैं और अपनी तालीम जो है ना कामयाबी से मुकम्मल करते हैं। तो नाज़रीन, आज हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सराय नवरंग के प्रिंसिपल जनाब मोहम्मद सलीम खान के साथ बैठे हैं। ये हमें आगाही फराहम करेंगे कि इस कॉलेज में कौन कौन सी चीज़ों की कमी है, क्या क्या इसमें मज़ीद होना चाहिए, और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि इस कॉलेज में जब से ये आए हैं इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने की कोशिश की है, कॉलेज फंड से टीचर लिए हैं BS क्लासेस के लिए, उसकी तगोदो इंतहाई काबिल सताइश है। आज हम खुद उनकी ज़बानी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि उन्होंने इस कॉलेज के लिए क्या क्या इक़दाम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कॉलेज मेरे ख्याल में 2001 में बना है, और उसके बाद मसाइल तो बहुत सारे थे। बहरहाल वक्त के साथ साथ काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ इसमें, और मसाइल पे ख़ासा कंट्रोल भी आ चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह है कि अभी तो जो तलब हैं और हम चाहते हैं कि इसमें बेहतरी हो। यहाँ पर स्टाफ की कमी है, और ख़ासकर टीचिंग के साथ साथ क्लरिकल की भी कमी है। तकरीबन 700 के करीब स्टूडेंट यहाँ पे दाखिल हैं। गरीब इलाका हम चाहते हैं कि इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे दाखिल कराए जा सके, लेकिन कुछ पोस्टें खाली पड़ी हैं और कुछ सेंक्शन कम है पोस्टों की, तो इस तरह हम ज़्यादा स्टूडेंट दाखिल नहीं कर सकते। तो आपको स्टाफ में तकरीबन कितनी कमी नज़र आ रही है कि स्टाफ की तादाद जो है कम है? क्लरिकल स्टाफ तो है भी नहीं इसमें, क्योंकि आप एक लेबर असिस्टेंट जो है उसको लीड कर रहे हैं क्लरिकल स्टाफ को। तो आप हुकूमत वक्त से कोई तकाजा करना चाहेंगे कि हमें जो है स्टाफ मुहैया किए जाए? इस वक्त 4 टीचिंग स्टाफ की 4 पोस्टें खाली हैं, और 4 की अलावा तो मज़ीद कम से कम 4 हमें और 8 पोस्टें हमें, तो फिर हमारा काम चलता रहेगा। इस तरह क्लरिकल के 2 पोस्टें 1-3 साल से खाली है, सिर्फ एक बार वो काम कर रहे हैं। हम BS भी चला रहे हैं, साथ साथ इंटर भी चला रहे हैं। एक तरफ अकाउंट का काम, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी का काम, इस तरफ बोर्ड का काम, यहाँ पे स्टाफ के भी काम और स्टूडेंट के भी। तो बहुत मसला इसमें बार बार दरख्वास्त भी कर चुके हैं, लेकिन बहरहाल हम मैनेज कर रहे हैं किस तरीके से कि ये काम पूरा हो। इसमें भी हम पार्टिसिपेशन की मदद से या स्टाफ की मदद से इस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं। साथ साथ हमें क्लासरूम का भी मसला है। इस वक्त 11 क्लासरूम इस तरह है जो सही फर्निश है, इस्टेब्लिश है, लेकिन हमें 16 या 18 तक क्लासरूम चाहिए। यहाँ पे कुछ पुराना बिल्डिंग है, पिछले इसके एग्रीकल्चर से जब से रेडी है, वो इसमें नहीं पुराने डिज़ाइन पे बने स्टाइल पे, उसमें कैपेसिटी नहीं है बैठने की। तो हम चाहते हैं कि इसकी जगह पर एक और टीचिंग ब्लॉक बन जाए, ताकि 6 या 8 क्लासरूम यहाँ पर इस तरह आ जाएंगे। इससे हमारे क्लासरूम का मसला हल हो जाएगा। ये जो पुराने बिल्डिंग में जिस गिरने का ख़तरा है वो भी हल हो जाएगा, और साथ साथ और हमें एक जो बिल्डिंग की खूबसूरती है कॉलेज की अपनी, वो भी इसमें पूरी हो जाएगी। यहाँ पे आपके एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक जो कि इंतहाई ज़रूरी है वो नहीं है। यहाँ पे क्लरिकल स्टाफ आपके साथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में जो एडमिन हुआ करता है वो नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये तो
किसी भी इदारे के लिए बुनियादी तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होना चाहिए, क्योंकि सारा रिकॉर्ड एक तरतीब से रखना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। हमारे पास न प्रॉपर रूम्स हैं, न इस तरह हम न रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, न प्रॉपर रख सकते हैं। तो क्लरिकल स्टाफ के साथ साथ हमें बिल्डिंग चाहिए ताकि इसमें हम तमाम जो कॉलेज का रिकॉर्ड है वो तरतीब से रख सकें, किसी वक्त हमें निकालना हो ढूंढ सकें। तो इस वजह से हमारा रिकॉर्ड बेतरतीबी से साथ पड़ा रहता है, क्योंकि जगह का मसला है, स्पेस का मसला है। अलबत्ता इस कॉलेज में एक चीज़ जो बहुत बेहतर मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि फर्नीचर बहुत ज़्यादा है, ठीक ठाक है। स्टूडेंट को कभी ये मसला नहीं रहा कि हमारे उसको ज़मीन पे भी या कमरे में फर्नीचर ना हो, ये चीज़। आपने इस कॉलेज में जब से आए हैं बहुत से इनकलाब इक़दाम किए हुए हैं। आपने BS क्लासेस भी शुरू की थी, तकरीबन 5 के करीब BS क्लासेस शुरू किए थे आपने, BS डिपार्टमेंट शुरू किए थे, लेकिन ना तो स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल है और ना जो है यहाँ लोगों का इतना रुझान है कि वो BS में दाखिले ले सके। आपकी जब हमें मालूम पड़ा है कि BS की 2 डिपार्टमेंट अभी स्टार्ट थी, लेकिन इसमें भी तादाद घटती जा रही है और तकरीबन 20 तक आई है। तो इस मसाइल पर आप कभी काबू पा सकेंगे या ये मसाइल जो के तू रहेंगे? असल में 5 डिसिप्लिन शुरू किए थे, लेकिन इसमें स्टूडेंट की दिलचस्पी क्योंकि BS में बहुत कम है, ज़्यादातर लोग BA BSc और फिर अब जो स्टेट है इसमें दिलचस्पी रखते हैं। तो हमारी तो कोशिश है कि किस तरह ये BS चले, क्योंकि BS जो है वो मास्टर डिग्री के लेवल का स्टडी है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे नौरंग में स्टूडेंट को, बच्चों को यूनिवर्सिटी जाना ना पड़े, यहाँ पर हम उसको सब प्रोवाइड कर सकें मास्टर लेवल की एजुकेशन। क्योंकि हुकूमत की भी अपनी मजबूरियाँ होती है, अगर एक डिसिप्लिन में स्टूडेंट या कम हो जाते हैं या उसमें नहीं आते तो उसको बंद करना पड़ता है। और इसी बुनियाद पे 2 डिसिप्लिन पिछले साल क्योंकि स्टूडेंट दाखिल नहीं लिए यहाँ पे BA BSc को प्रेफर किया तो वो बंद कर दिए गए। अब इस दफ़ा भी BS में जो फर्स्ट सेमेस्टर में दाखिला होना था स्टूडेंट ने नहीं किया और लोग दूसरे स्टेट कॉलेज में चले गए। तो हम इस पर सोचते हैं और गवर्नमेंट से भी राब्ते में हैं कि अगर ये सिलसिला BS को लोग नहीं करते पूरी तरह तो फिर हम नेक्स्ट ईयर से स्टेट शुरू करें, ताकि नौरंग के लोग गोलीवाला या तजोड़ी या लक्की या इस जाएँ। इसकी बजाय बेहतर है कि हम उसके लिए यहाँ पर स्टेट शुरू करें, क्योंकि BS में तो उसकी दिलचस्पी है नहीं या उसमें स्टूडेंट नहीं आते। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम स्टेट शुरू करें, ताकि ये यहाँ पे नौरंग के लोग जो हैं वो दूर दूर कॉलेजों में के लिए न भागे, बल्कि यहाँ पर उसको बेहतरीन तालीम मिल सके। ये आप अगले साल से कोशिश करेंगे इन तलबा के मुस्तकबिल के लिए कि यहाँ पे आप ADA शुरू करें, एसोसिएट डिग्री एजुकेशन शुरू कर लें, लेकिन साथ साथ ये BS का जो मसला है ये कैसे हल होगा? BS तो लाजमी है, क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तब बनता है जब आप उसमें BS की क्लासेस ले रहे होते हैं। तो यूनिवर्सिटी के बजाय अगर आप यहाँ पे कोई अच्छी सी फैसिलिटेशन फराहम करें तो क्या इसको राग़िब नहीं कर सकते स्टूडेंट को? स्टूडेंट की अपनी एक मेंटेलिटी है, और हम तो इस दफ़ा भी हमने एक दफ़ा इश्तिहार किया, फेसबुक पे किया, नेट पे किया, बहुत सारे वैसे भी मुहिम चलाया, फिर स्टूडेंट की तादाद नहीं पूरी हुई, फिर हमने दोबारा एडवर्टाइज़ किया, दोबारा साइकिल चलाया और इस तरह फिर भी पूरी ना हो सके। तो हम तो यही चाहते हैं, तमाम वालिदैन से गुजारिश करते हैं कि आप बच्चों को राग़िब करें, बच्चों को बता दें कि नहीं, जब एक MA लेवल का पढ़ाई आपको सराय नौरंग में मिल सकती है तो क्यों आप यूनिवर्सिटीज़ के पीछे या दूसरे कॉलेज के पीछे भागते रहें। और माशाल्लाह यहाँ पे हमारा जो स्टाफ है वो सूबे में किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल से कम नहीं है। यहाँ पे ठीक ठाक पढ़ाई होती है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सूबे में इस हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें हमारे जो BS का सिस्टम है वो सबसे बेहतर चल रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का खर्चा भी कम होगा, एडमिशन फीस इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी यूनिवर्सिटी में हो, ये और कॉलेज की सीमत की जो सिस्टम होगी वो भी बेहतर होगी। लेकिन फिर भी ये लोग आगे जाते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट का खर्चा अलग होता है, हॉस्टल का खर्चा अलग होता है। क्या ये अच्छी बात नहीं होगी तलबा के लिए, वालिदैन के लिए, कि वो यहाँ पे दाखिले ले और बच्चों को अपने घर में जो है ताज़ा रोटी के साथ उसको परवरिश कर सके और उसको परवर करे और यहाँ पे भी BS की क्लासेस लें? हम तो चाहते ही हैं, देखिए एक सेमेस्टर का जो खर्चा हमारे पास तकरीबन 4000 से कुछ कम या ज़्यादा है और यूनिवर्सिटी में 24,000 तक लेते हैं एक सेमेस्टर का खर्चा। जी।
तो यहाँ पे डिफरेंस, फिर वहाँ पे जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी, फर्ज कर लेकिन यूनिवर्सिटी है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट से लोग जाते हैं। यहाँ पे करीब इसको ट्रांसपोर्ट यहाँ पे घर की दहलीज पे वाक़ है। दहलीज पे वाक़ है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं है, जो सफ़र का हेडेक है वो भी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे या वालिदैन इस चीज़ को नहीं समझते कि ये हमारे लिए कितने फ़ायदे की बात है। जितना खर्चा वो वहाँ पे एक सेमेस्टर पे करेंगे, मेरे ख्याल में यहाँ पे 8 सेमेस्टर का उतना खर्चा नहीं होगा। और तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को वालिदैन तक पहुँचाए, आपकी आवाज़ तलबा तक पहुँचाए, क्योंकि यहाँ पे ये कम खर्च वाला नशीनी की बात है। अगर वो यहाँ पे दाखिले लेते हैं तो उसका एक तरफ से खर्चा भी कम हो जाएगा और दूसरी तरफ एजुकेशन की बेहतरीन फैसिलिटेशन हासिल होगी। देखिए इस तरह ना एक सिस्टम जब चलता है जिस तरफ जिसके लिए बनाया होता है, अगर उसमें वो चीज़ शामिल नहीं है तो फिर वो तो ख़त्म करना पड़ता है। अब ये शुरू किया था 5 डिसिप्लिन, हमारी कोशिश थी कि हम इसको 10 या 12 डिसिप्लिन तक ले जाएं, लेकिन उल्टा रिवर्स हुआ स्टूडेंट की दिलचस्पी की वजह से। अब हमारे पास जितने भी डिसिप्लिन हैं उसके लिए कम से कम 20 स्टूडेंट चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40, लेकिन किसी एक डिसिप्लिन में भी इस वक्त 20 से ज़्यादा बल्कि 7-7 8 स्टूडेंट हैं। तो गवर्नमेंट ऐसे डिसिप्लिन को फिर बंद करता है क्योंकि ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्टूडेंट की दिलचस्पी कम हो जाती है। लिहाजा अगर वालिदैन अपने बच्चों को राग़िब करें कि ये फ़र्ज़ करें यहाँ पे घर पे दहलीज पे आपको कम खर्चे पे बल्कि न होने के बराबर खर्चे पर आपको मिल रहा है अच्छी तालीम, क्यों आप दूर दूर बात करें। तो हम तो यही चाहते हैं कि डिसिप्लिन अभी जो 5 से घट के 3 बने नहीं, हम चाहते हैं इसको 10-12 तक बढ़ाएं, लेकिन ये स्टूडेंट की दिलचस्पी पर है। जितना अगर वो आएंगे दाखिला लेंगे, हम तो हर साल ऑफर करते हैं, तो फिर ये चीज़ आगे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। लेकिन अगर ये इस तरह दाखिले दिलचस्पी कम रखते हैं तो फिर तो ज़ाहिर बात है ख़त्म हो जाएगा और फिर गवर्नमेंट इसको इस रेट में कन्वर्ट करेगी। तो आपकी वालिदैन से क्या अपील है? बस हम ये अपील करते हैं, हम स्टूडेंट को जब दाखिल कर लेते हैं तो यहाँ से स्टूडेंट फारिग हो जाता है, लेकिन एक बार कोई भी वालिदैन ये नहीं पूछता कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, कॉलेज जाता है कि नहीं। घर से तो निकलता है कॉलेज के नाम पे, लेकिन हम वालिदैन से यही गुजारिश करते हैं हमारे साथ रब्ता रखें, कभी कभी कॉलेज का विज़िट करें, अपने बेटे का भी पूछा करें और हमारे सिस्टम को भी देखें कि हम किस तरह चला रहे हैं। अगर जहाँ पे कहीं खामी है, कमज़ोरी, तो हमें भी बताया करें, हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, हम उसको इम्प्रूव करेंगे और बच्चों को राग़िब करें। लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ बात है वो ये है कि वो स्टूडेंट का ख्याल रखें, पूछे कि मेरा बेटा सुबह घर से निकला है, शाम को आया, दरमियान में कहाँ, क्योंकि अगर हम तो कॉलेज के अंदर तक मौजूद है, अगर कॉलेज के अंदर बच्चा आता है हम पढ़ाते हैं, अगर कोई बच्चा कॉलेज के अंदर नहीं आता तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों का ख्याल रखें, हमारे साथ रब्ता रखें और कभी कभी विजिट करके सिस्टम को देकर और बच्चे का। तो नाज़रीन, आपने देखा प्रिंसिपल साहब ने इंतहाई तफसीली से बात की कि यहाँ पर हमने 5 डिसिप्लिन शुरू किए थे, लेकिन उसके लिए तलबा नदारत थे, हमें बंद करने पड़े। अब बमुश्किल से 2 चालू है, लेकिन उसमें भी तादाद घटती जा रही है। क्यों हम आसाइशों के पीछे भाग रहे हैं? क्यों हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, जबकि यहाँ पर अपने ही गांव में, अपनी ही दहलीज पर बेहतरीन फैसिलिटेशन अवेलेबल है। वालिदैन को चाहिए कि वो इसका फ़ायदा उठाए, कम खर्च बाला नशीनी से इसको चलाएं, क्योंकि जो अखराजात आप यूनिवर्सिटी में बर्दाश्त करते हैं, जो अखराजात अपने बेटे के लिए आप बेहतरीन तालीम पे खर्च करते हैं, अगर उसी अखराजात में आप एक सेमेस्टर के अखराजात में उसका पूरा BS हो सकता है, पूरी MA तक तालीम हो सकती है, तो क्यों ना कि आप अपने बच्चों को अपनी ही दहलीज पे पढ़ाएं, ना कि कहीं कुहाट जाना पड़े, कहीं डी खान जाना पड़े, कहीं लेके जाना पड़े। मसाइल होंगे, हालात ख़राब होंगे, सेमेस्टर के लिए पैसे भी चाहिए होंगे, मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इसको जमा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 4 से 5 हज़ार रुपये पे अगर फी सेमेस्टर आपको एजुकेशन मुयसर है अपने गांव में, तो क्यों ना कि इस पर हम भी नज़र दौड़ाएं। यकीनन अफसोसनाक बात है वालिदैन के लिए, अफसोसनाक बात है तलबा के लिए कि अपने बेहतरीन मादरी इल्मी में इंतहाई फैसिलिटेशन के साथ, जिस तरह प्रिंसिपल साहब ने अर्ज़ किए कि यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन मुअल्लिम मौजूद है,
हमारा बीएस सिस्टम सारी यूनिवर्सिटियों और सारे कॉलेजों से बेहतर है, तो क्यों ना कि हम यहाँ पे रुख करें और बीएस में दाखिले लें, ताकि हमारा मादरी इल्म दूसरों के मुकाबलों में इससे बढ़कर रहे। वस्सलाम। हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने हमें इज़्ज़त अफजाई की, इज़्ज़त बख्शी, कि हमें मदऊ किया और हम उसकी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।